بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ ہم آپ کو تاریخ اسلام میں حضرت خالد بن ولید کی 93 نمبر قسط میں 93 قسط میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور لاسٹ ہم 92 میں 92 میں ہم جب بیان کر رہے تھے، جہاں روکا تھا وہیں سے ہم شروع کرتے ہیں۔ تو ہم کہہ رہے تھے، اس میں بیان کر رہے تھے کہ اس وقت انہوں نے ہمارے جو جنگجو تھے ابن حارثہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ اور میرے لیے یہ بھی آسانیاں نہیں ہے کہ میں ان دشواریوں اور مرحومیوں سے گھبرا کر یہیں سے واپس چلا جاؤں۔ یہ ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں، ہم واپس نہیں جائیں گے۔ ابن ولید مثلا نے پرعزم لہجے میں کہا، ہمیں کسرا کے ایوانوں کی اینٹ سے اینٹ بجانی ہے۔ ہمیں ان عاطف پرستوں پر یہ ثابت کرنا ہے کہ جھوٹے خدا کسی کی دستگیری نہیں کر سکتے۔ ہم یہاں پہنچے تھے پچھلی قسط میں۔ تو آگے حضرت خالد بن ولید اپنے سالاروں کو بلایا۔ اس سے پہلے وہ مال غنیمت اکٹھا کرنے کا حکم دے چکے تھے۔ ہماری مشکلات اب شروع ہوئی ہیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے سالاروں سے کہا، ہم اس وقت دشمن کی سرزمین پر کھڑے ہیں۔ یہاں کے درخت اور یہاں کے پتھر اور اس مٹی کا ذرا ذرا ہمارا دشمن ہے۔ یہاں کے لوگ ہمارے لیے اجنبی ہیں۔ ان لوگوں پر فارس کی شہنشاہی کی دہشت طاری ہے۔ یہ لوگ ارد شیر کو فرعون سمجھتے ہیں، اور یہ بڑی مشکل سے مانیں گے کہ کوئی ایسی طاقت بھی ہے جس نے فارس کی شہنشاہی کا بت توڑا ہے۔ میرے روح کو یہاں کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملائیے، بغیر ہم یہاں کے ایک قدم بھی نہیں چل سکتے۔ ہم کسی سے تعاون کی بھیک نہیں مانگیں گے، ہم محبت سے ان کے دل مول لینے کی کوشش کریں گے، اور جس پر ہمیں ذرا سا بھی شک ہوگا کہ وہ ہمیں ظاہری طور پر یا در پردہ نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم اسے زندہ رہنے کے حق سے محروم کر دیں۔ ہم ان لوگوں کو غلام بنانے نہیں آئے، ہم انہیں غلامی سے اور باطل کے عقیدوں سے نجات دلانے آئے ہیں۔ جو علاقے ہم نے لے لیے ہیں، ان کے انتظامی امور کی طرف فوری توجہ دینی ہے۔ یہاں مسلمان بھی آباد ہیں، وہ یقیناً ہمارا ساتھ دیں گے، لیکن میرے دوستو، کسی پر صرف اس لیے اعتبار نہ کر لینا کہ وہ مسلمان ہے۔ غلامی اتنی بری چیز ہے کہ انسان کی فطرت بدل جاتی ہے۔ یہاں کے مسلمانوں کو اعتماد میں لے کر ان سے معلوم کرنا ہے کہ شہنشاہ فارس کے حامی کون کون ہیں۔ ان کی چھان بین کر کے ان کے درجے مقرر کرتے ہیں۔ جن پر ذرا سے بھی شک ہوا اسے گرفتار کر لو، اور جو غیر مسلم سچے دل سے ہمارے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں، اسے اسلام کی دعوت دو۔ میں مختلف شعبے قائم کر رہا ہوں۔ خالد نے مفتوح علاقوں کے باشندوں پر سب سے زیادہ توجہ دی۔ انہوں نے اعلان کیا کہ جو غیر مسلم باشندے مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لیں، ان سے جزیہ وصول نہ کیا جائے، اور مسلمان انہیں اپنی پناہ میں سمجھیں گے۔ ان کی ضروریات اور ان کی جان و مال کا تحفظ مسلمانوں کی ذمہ داری ہوگی۔ اس اعلان کے ساتھ ہی بیشتر باشندے مسلمانوں کی پناہ میں آ گئے۔ حضرت خالد بن ولید اس علاقے سے جزیہ اور محصولات وغیرہ جمع کرنے کے لیے ایک شعبہ قائم کر دیا، جس کا نگران سوید بن مقرن کو مقرر کیا گیا۔ دوسرا شعبہ جس کا سب سے زیادہ ضرورت تھی وہ جاسوسی کا شعبہ تھا۔ اب باقاعدہ اور ماہرانہ جاسوسی کی ضرورت تھی۔ حضرت خالد بن ولید نے اسی وقت اپنے جاسوس، جو اس علاقے کے رہنے والے مسلمان تھے، دریائے فرات کے پار بھیج دیے۔ جب مال غنیمت جمع ہو گیا تو دیکھا کہ یہ جنگ سلاسل کی نسبتاً خاصا زیادہ تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے اس کے 5 حصے کیے، 4 اپنے سپاہ میں تقسیم کر کے 5واں حصہ مدینہ منورہ بھیج دیا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ حضرت خالد بن ولید کو اتنا سنجیدہ اور اتنا متفکر کبھی نہیں دیکھا گیا تھا جتنا وہ اب تھے۔ مئی 633 کے پہلے ہفتے میں، ماہ صفر 12 ہجری کا تیسرا ہفتہ تھا، زرتشت کے پجاریوں کے لیے دریائے فرات کا سرسبز اور شاداب خطہ جہنم بن گیا تھا۔ کس قدر
नाज था। इन्हें अपनी जंगी ताकत पर, अपनी शान और शौकत पर, अपने घोड़ों और हाथियों पर, वो तो फराउनों के हम पल्ला होने का दावा करने लगे थे और कसरी दहशत की अलामत बनता जा रहा था। दजला और फरात के संगम के वसी इलाके में हजरत खालिद बिन वलीद ने, जिन्हें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की तलवार का खिताब दिया था, फारस के जरतश्तियों को बुरी तरह शिकस्त दी थी और इनके हरमज फार्न बिन करयानसो, अर्नु शजान और कबाज जैसे सलारों को मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन कसरे और अर्दशेर ने अभी तक शिकस्त तस्लीम नहीं की थी। इसके पास अभी बेपनाह फौज मौजूद थी और मदीना के मुजाहिदीन को वो अब भी बद्दू और सहराई लुटेरे कहता था। इसने शिकस्त तस्लीम तो नहीं की थी, लेकिन शिकस्त और अपने नाम और सलारों के मुसलमानों के हाथों मौत का जो इसे सदमा हुआ था, इसे वो छुपा नहीं सका था। हरमज की मौत की इतला पर वो अपने दिल पर हाथ रखकर दूरा हो गया था। इसने संभलने की बहुत कोशिश की, लेकिन ऐसे मर्ज का आगाज हो चुका था जिसने इसे बिस्तर पर गिरा दिया था। मुअर्रिखों ने इस मर्ज को सदमा का असर लिखा है। क्या मेरे लिए शिकस्त और पसपाई के सिवा अब कोई खबर नहीं रहेगी? इसने बिस्तर पर उठकर बैठे हुए गर्ज कर कहा, क्या मदीना के मुसलमान जिन्नात हैं? क्या वो किसी को नजर नहीं आते और वार कर जाते हैं? तबीब अर्दशेर के मंजूर नजर 2 जवान साल बीवियां और इसका वजीर हैरान और परेशान खड़े और कासद को घूर रहे थे, जो ईरानियों की फौज की एक और शिकस्त और पसपाई की खबर लाया था। इसके आने की जब इतला अंदर आई तो तबीब ने बाहर जाकर कासद से पूछा था कि वो क्या खबर लाया है। कासद ने खबर सुनाई तो तबीब ने इसे कहा था कि वो कस्बे को अब भी ऐसी बुरी खबर ना सुनाए, क्योंकि इसकी तबीयत इसके मुस्तहम्मल नहीं हो सकेगी। लेकिन ये कासद कोई मामूली सिपाही नहीं था कि वो तबीब का कहना मान जाता। वो पुराना कमांडर था। इसका ओहदा सलारी से 2 ही दर्जा कम था। इसे किसी सलार ने नहीं भेजा था। इसे भेजने के लिए कोई सलार जिंदा नहीं बचा था। तबीब के रोकने से वो ना रुका। इसने कहा कि इसे कसरा की सेहत का नहीं, फारस की शहनशाही और जरतश्त के अजीम का गम है। अगर शहनशाह अर्दशेर को इसने दजला और फरात की जंगी कफीत की पूरी इत्तला न दी तो मुसलमान मदैन के दरवाजे पर आ धमकेंगे। इसने तबीब की और कोई बात ना सुनी और अंदर चला गया और अर्दशेर को बताया कि मुसलमानों ने फारस की फौज को बहुत बुरी तरह शिकस्त दी और अर्दशेर लेटा हुआ था, उठ बैठा। गुस्से से इसके होंठ और इसके हाथ कांपने लगे। शहनशाह फारिस कमांडर ने कहा, मदीना वाले जन्नात नहीं, वो सबको नजर आते हैं, लेकिन क्या कारण मर गया? अर्दशेर ने गुस्से से पूछा। हाँ शहनशाह, कमांडर ने जवाब दिया, वो जाती मुकाबले में मारा गया था। इसने दोनों फौजों की लड़ाई तो देखी ही नहीं। मुझे इत्तला दी गई थी कि कबास और अर्नु शजान भी इसके साथ थे। वो भी कारण के अंजाम को पहुंच गए थे। कमांडर ने कहा, वो कारण के कत्ल का इंतकाम लेना चाहते थे। दोनों ने इकट्ठे आगे बढ़कर मदीना के सलारों को ललकारा और दोनों मारे गए। शहनशाह फारस, क्या फारस की इस अजीम शहनशाही को इस अंजाम तक पहुंचाना है? नहीं, गुस्ताखी की माफी चाहते हो। अगर कसरा ने सदमे से अपने आप को यूं रोग लगा लिया तो क्या हम जरतश्त की अजमत को मदीना की बदबुओं से बचा सकेंगे? तुम कौन हो? अर्दशेर ने पूछा। मैं कमांडर हूं। कमांडर ने जवाब दिया, मैं किसी का भेजा हुआ कासद नहीं, मैं जरतश्त का जानसार हूं। दरबान को बुलाओ, अर्दशेर ने हुक्म दिया। तुमने मुझे नया हौसला दिया है। मुझे ये बताओ कि क्या मुसलमानों की नफरी ज्यादा है? क्या इनके पास घोड़े ज्यादा हैं? क्या है इनके पास? दरबान अंदर आया और हुक्म के इंतजार में झुककर दौरा हो गया। सरदार अंदर जखर को बोला, फौरन बुलाओ। अर्दशेर ने दरबान से कहा और कमांडर से पूछा, क्या है इनके पास? आप बैठ जाओ और मुझे बताओ। हमारे मुकाबले में इनके पास कुछ भी नहीं। कमांडर ने जवाब दिया, इनमें लड़ने का जज्बा है। मैंने इनके नारे सुने, वो नारों में अपने खुदा और रसूल
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारते हैं। मैंने इनमें सब अपने मजहब का जुनून देखा है, वो अपने अकीदे के बहुत पक्के हैं और यही इनकी ताकत है। हर मैदान में इनकी तादाद थोड़ी है। ठहर जाओ, अर्दशेर ने कहा। अंदोज कुरा आ रहा है, अंदर जहर आ रहा है। मुझे अपने इस सलार पर भरोसा है। इसे बताओ कि हमारी फौज में क्या कमजोरी है, क्या कि इतनी ज्यादा तादाद में होते हुए भाग आती है। अंदर जागर अर्दशेर बिस्तर पर नीम दराज था। अपने एक और नामवर सलार से कहने लगा, क्या तुमने सुना नहीं कि कारन बिन करयान भी मारा गया और कबाज भी मारा गया और बनु शजान भी मारा गया। अंदर जरखार की आंखें ठहर गई, जैसे हैरत से इस पर सख्ता तारी हो गया हो। इसे बताओ कमांडर, अर्दशेर ने कहा। कमांडर से कहा कि क्या मैं इन हालात में जिंदा रह सकूंगा। कमांडर ने सलारे अंदर जगर को तफसील बताई कि मुसलमानों ने इन्हें दरियाए महकल के किनारे किस तरह शिकस्त दिया और ये भी तफसील से बताया कि मदैन की फौज किस तरह भागी है। अंदर जाकर अर्दशेर ने कहा, हम आप एक और शिकस्त का खतरा मोल नहीं ले सकते। मुसलमानों से सिर्फ शिकस्त का इंतजाम नहीं लेना, इनकी लाशें फरात में बहा देनी है। ये इसी सूरत में मुमकिन है कि तुम ज्यादा से ज्यादा फौज लेकर जाओ। तुम इस इलाके से वाकिफ हो, तुम बेहतर समझते हो कि मुसलमानों को कहाँ घसीट कर लड़ना है और कहाँ घसीट कर लड़ाना है। और रेगिस्तान के रहने वाले, तुम रेगिस्तान के रहने वाले हो, अंदजगर ने कहा, और वो रेगिस्तान ही से लड़ सकते हैं। मैं इन्हें सरसब्ज और दलदली इलाके में आने दूंगा और इन पर हमला करूंगा। मेरी नजर में दलजा मौजू इलाका है। इसने कमांडर से पूछा, इसके घोड़ों के सवार कैसे हैं? ये घोड़ों के सवार कैसे हैं? इनके सवार दस्ते ही इनकी असल ताकत है। कमांडर ने कहा, इनके सवार बहुत तेज और होशियार हैं। दौड़ते घोड़ों के इनको चलाते हुए तीर खता नहीं जाते। इनके सवारों का हमला ही तेज होता है और जम कर नहीं लड़ते, एक हल्ला बोलकर इधर उधर हो जाते हैं। यही वो राज है जो हमारे सलार नहीं समझ सकते। अंदजगर ने कहा, अपनी रान पर हाथ मार कर कहा, मुसलमान आमने सामने की जंग लड़ ही नहीं सकते। हम इनकी कई गुना ज्यादा फौज ले जाएंगे। मैं इन्हें अपनी फौज के नीम दायरा में लेकर मजबूर करूंगा कि वो अपनी जान बचाने के लिए आमने सामने की लड़ाई लड़े। अर्दशेर ने कहा, यहां बैठकर मंसूबा बना लेना आसान है, लेकिन दुश्मन के सामने जाकर इस मंसूबे पर इसके मुताबिक अमल करना बहुत मुश्किल होता है। इस कमांडर ने एक बात बताई, इस पर गौर करो। ये कहना है कि मुसलमान अपने मजहब और अपने अकीदे के वफादार हैं और अपने खुदा और अपने रसूल का नाम लेकर लड़ते हैं। क्या हमारी फौज में अपने मजहब की वफादारी है? तो दोस्तों, इसके साथ ही हम इजाजत चाहते हैं। कल इंशाअल्लाह ताला अगली किस्त 94 नंबर में यहीं से शुरू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।